Hi viewers, welcome to our channel Divya English Academy. In today's video, I am going to be explaining you about pronoun. What is pronoun and its types with examples. In previous video, I taught about what is noun and its kinds with examples. If you haven't watched that video, please go through that. And the second part of speech is known as a pronoun. So watch this video from beginning till end. Now we will see first of all the definition. What is pronoun? Pronoun क्या है? Various definitions are there. Pronoun are those words which are used in place of noun is called pronoun. Or else we say pronoun are those words which are used instead of noun are called pronouns. Fine. Now according to these notes, let's see here the word that is used in place of the name noun is called pronoun. It simply means नाउन के स्थान पे जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस. है ना, संज्ञा के स्थान पे, नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज्ड होते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है. दैट्स इट. एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउंस: मैं, तुम, आई, वी, यू, तुम्हारा, उनका, आपका, हम, स्वयं इत्यादि. ऑल दोज वर्ड्स आर नोन एज अ प्रोनाउन. आई, माई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, वी, अवर, अवर्स, अवरसेल्फ, दे, देम, देयर्स, हिज, हर, हिम, हर सेल्फ. ऑल दोज वर्ड्स आर नोन एज अ pronoun. Examples: why we need to study pronoun and how it has to be used in sentences. The reason is that, for example, here अभिषेक ने कहा अभिषेक को भूख लगी, अभिषेक खेलने जा रहा है, अभिषेक खेलता है, अभिषेक थोड़ी देर में आ जाएगा. सो हम बार बार एक सेंटेंस में जो अभिषेक नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उसके स्थान पे जो वर्ड्स यूज्ड होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है. जो वर्ड्स वहाँ पे यूज़ होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है. फाइन. इसलिए वाई वी हैव टू स्टडी द प्रोनाउन, वी नीड टू स्टडी द प्रोनाउन, the words which will be used in place of noun. As we know that nouns are in various kinds, so pronoun definitely will be in various kinds also. Types of pronouns or kinds of pronouns. So pronoun are also in different categories. Fine. Let's see them one by one. How many pronouns are there in English language? Number 1, personal pronoun. Number 2, possessive pronoun. Number 3, reflexive pronoun. Number 4, emphatic pronoun. Number 5, demonstrative pronoun. Number 6, indefinite pronoun. Number 7, distributive pronoun. Number 8, reciprocal pronoun. Number 9, relative pronoun. Number 10, interrogative pronoun. So there are 10 kinds of pronoun. First of all, we must understand there are 10 kinds of pronoun. So let's see them one by one with examples. Number 1, personal pronoun. What do you mean by personal pronoun? Personal pronoun means all those pronouns which are used for personal purposes. क्या personal words क्या होगी? I, we, you, he, she, it, they. These all are known as a personal pronouns. Examples: I read a book. I am talking about myself, the personal. Fine. I read a book. I known here as a personal pronoun in subjective case. Fine. What is I according to English 8 parts of speech? I known as a personal pronoun in subjective case. Fine. We. What is we? We known as a personal pronoun in subjective case, being used as subject in the sentences. We are going to market. Fine. So now what are the personal pronouns? I, we, you, he, she, it, they. All the subject words are known as a personal pronouns. Fine. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पे व्यक्ति अपने आप जो है सेंटेंसेस पे बात कर रहे हैं. सेकेंड वन, पोजेसिव प्रोनाउंस. अधिकार वाचक सर्वनाम, जहाँ पे अधिकार वाली बात है. पोजेसिव प्रोनाउंस, और जिसको मालिकाना हक भी बोलते हैं. इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं देखेंगे. ओके. सो पोजेसिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है. एज आई टोल्ड यू, मालिकाना हक, जहाँ पे हम अपना मालिकाना हक दिखा रहे हैं तो उसे हम बोल देंगे पोजेसिव प्रोनाउन. कौन कौन से वर्ड्स इसमें आएंगे? इसमें आएंगे माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, इट्स, ये सारे. और इसके साथ
नाउन नहीं लगती है, वो हमें पता है। इनका यूज जो है लास्ट में किया जाता है विदाउट नाउन। नाउ फॉर एग्जाम्पल हियर, दिस लैपटॉप इज माइन। व्हाट इज माइन हियर? पोजेसिव प्रोनाउन। क्या दिखा रहा है? मालिकाना हक, अधिकार। किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। किसके ऊपर? लैपटॉप के ऊपर, बिकॉज आई एम दी ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैपटॉप। दिस इज सॉरी दिस लैपटॉप इज माइन, दिस कार इज योर्स, दैट हाउस इज हर्स, दैट शॉप इज देयर्स, दैट अकेडमी इज आवर्स। ओके, ये सारे वर्ड्स आते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस में। लाइक दिस बुक इज योर्स। योर्स क्या है यहाँ पे? पोजेसिव प्रोनाउन। क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? मालिकाना हक। ये बुक आपकी है, यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जब वाक्य में जो है माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, सिम सेल्फ, जो भी सेल्फ का यूज होता है क्या करने के लिए? प्रयोग से काम करने के लिए। खुद का असर कर्ता पर प्रतीत होता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जहाँ पे जो है खुद का असर जो है कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, दैट्स नोन एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स, आई हर्ट माई सेल्फ, है ना। सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है जोर किसके ऊपर पड़ रहा है? खुद के ऊपर पड़ रहा है, खुद को दर्शा रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ। वी कैन हेल्प अवर सेल्फ्स, they can do their work themselves. So examples, myself, ourselves, all these selves words are known as the reflexive words also, emphatic also, but they are used in little different way. When it is used in the reflexive, that will be different. When it is used in the emphatic, that will be different. Now next, number 4 is called emphatic pronoun, बलदायक सर्वनाम। इससे पहले हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहाँ पे जो है सब्जेक्ट खुद दर्शाने के लिए उसका जो है यूज कर रहा है। बट नाउ नंबर 4 इज एम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, जहाँ पे जो है ये सर्वनाम एम्फासाइज करता है। एम्फेटिक प्रोनाउन डेफिनेशंस इन हिंदी, जब माई सेल्फ, अवर सेल्फ, जो भी सेल्फ्स का जो है प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। किस चीज के लिए? जोर देने के लिए। किसको जोर देने के लिए? नाउन और प्रोनाउन के ऊपर जोर देने के लिए। नाउन और प्रोनाउन के ऊपर जोर देने का मतलब है एम्फासाइज करने के लिए। उसको हम ज्यादा जो है स्ट्रेस दे रहे हैं, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसे इसका यूज होता है, तो ये भी जो सेल्फ वाले वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, जो भी सेल्फ है, इनको हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। कैसे होता है? एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पे। Examples, I killed the rat myself. I killed the rat myself. Myself क्या कर रहा है यहाँ पे? जोर दे रहा है। किसके ऊपर जोर दे रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई को ज्यादा दर्शा रहा है, एक अचीवमेंट वाली बात हो रही है, ठीक है ना। जोर दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, यहाँ पे एम्फासाइज कर रहा है। आई किल्ड द स्नेक माई सेल्फ, किया हो तो मेरे लिए बड़ी बहादुरी की बात हो रही है। तो माई सेल्फ, आई के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर क्या दे रहा है? जोर दे रहा है। नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जो है ये सेल्फ वाले वर्ड्स जब जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं, एम्फासाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अनदर, यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद कर सकते हो। यू के ऊपर जोर देने के लिए यू सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ। आई मेट द प्राइम मिनिस्टर माई सेल्फ, मैं खुद से प्राइम मिनिस्टर को मिला। सो ऊपर दिए गए माई सेल्फ, योर सेल्फ, एम्फेटिक, सारे सेल्फ वाले वर्ड्स को जब नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, जोर कैसे देते हैं? जैसे आई भी लगा है, पीछे माई सेल्फ भी लगा है, यू भी लगा है, पीछे योर सेल्फ भी लगा है, ऐसे यूज किया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 5, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ध्यान देना, संकेतवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेशन का क्या मीनिंग होता है? डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू शो समथिंग बाय गिविंग एन एग्जाम्पल्स, किसी चीज को जो है दिखाना एग्जाम्पल्स देने के साथ, किसी चीज को दिखाना एग्जाम्पल्स देने के साथ, उसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। डेमो दे रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ दिस इज माई पेन, पेन को दिखा भी रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, पेन पकड़ा हुआ भी है।
है ना, समझ में आनी चाहिए बात, ये डेमोन्स्ट्रेट। और इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सी प्रोनाउंस आती है देखेंगे। उससे पहले हिंदी डेफिनेशंस देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तु या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसको हम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स, दिस इज अ टाइगर, दैट इज अ टेबल। इससे पहले ध्यान रखना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सी प्रोनाउन आती हैं, दिस, दैट, दीस, दोज। ये प्रोनाउन जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पाई जाती है। दिस का यूज होता है नियर के लिए, सिंगुलर के लिए, प्रेजेंट के लिए। एनएसपी याद रखना, दिस यूज्ड फॉर नियर, दिस यूज्ड फॉर सिंगुलर, दिस यूज्ड फॉर प्रेजेंट, दैट यूज्ड फॉर फार, दैट यूज्ड फॉर सिंगुलर, दैट यूज्ड फॉर पास्ट, एफएसपी। and these used for near, these used for plural, these used for present, those used for far, those used for past, those used for plural. This we have to remember. Fine. The example given here, this is a tiger. क्या मतलब इसका, टाइगर की ओर जो है संकेत किया जा रहा है, हाथ किया जा रहा है, उंगली की जा रही है, उसकी ओर दिखा रहे हैं, संकेत देने के द्वारा बता रहे हैं अपने साथ वाले लोगों को, दिस इज अ टाइगर। टाइगर नजदीक में है, टाइगर अकेला है, टाइगर प्रेजेंट है। फाइन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज अ टेबल, टेबल फार है, दूर है, तो भी संकेत करके हाथ या उंगली उसकी ओर लगा रहे हैं, दर्शा रहे हैं बताने के लिए, दैट इज अ टेबल। और दैट का यूज पास्ट के लिए भी होता है, दैट डे, हु वाज दैट बॉय स्टैंडिंग विद यू। फाइन। एंड अनदर थिंग, these days, what are you doing these days? These days I am learning English. These are the girls of our academy. ये हमारी एकेडमी की लड़कियां हैं, है ना। गर्ल्स की ओर जो है हाथ या उंगली दिखा के संकेत करके दूसरों को बता रहे हैं, these are the girls of our academy. these का यूज नियर के लिए, प्रेजेंट के लिए, प्लूरल के लिए, क्योंकि लड़कियां ज्यादा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आ गया, these प्लूरल। those are boys sitting in the back side. जो लड़के बैक साइड में बैठे हैं वो बॉयज है, एंड दे आर शाउटिंग। फाइन। सो दोज यूज्ड फॉर फार एंड दोज यूज्ड फॉर द पास्ट आल्सो, known as a demonstrative pronoun. Examples, those days there were no cell phones at all for the communication as we have now. Now for example here, this, that, these, those used as the demonstrative pronoun. नंबर 6, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट, जहाँ पे हमें पता नहीं है किसी चीज, व्यक्ति का वो कितना है, कितना मतलब एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं है। इफ वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, दैट इज नोन इंडेफिनिट। एग्जैक्ट हो, वी नो दैट दिस इज द एग्जैक्ट नंबर, दैट इज डेफिनिट। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन वेयर वी हैव नो आइडिया, है ना, जिस प्रोनाउन में किसी अनिश्चय व्यक्ति वस्तु का बोध हो, अनिश्चय, जहाँ पे हम जो है निश्चित नहीं है, अनिश्चय है, वी हैव नो आइडिया, सो उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे कौन कौन सी प्रोनाउन इंडेफिनिट में आती हैं। लाइक एनीबडी कैन बीट हिम। एनीबडी क्या है, कोई किसी का नाम नहीं है, राहुल, मोहन, कोई भी हो सकता है, राहुल भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, बट स्पेसिफिक नाम नहीं है। जब स्पेसिफिक नाम नहीं है, सो दिस इज नोन एज द इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आने वाले वर्ड्स एनीबडी, समबडी, समवन, फाइन, नोबडी, ये सारे वर्ड्स जो है आएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में। प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, नोबडी कॉल्ड मी इन दिस मॉर्निंग, किसी ने भी मुझे कॉल नहीं किया, किसी ने भी कॉल नहीं किया, क्या है, किसी जो है सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, और जो प्रोनाउन की जगह पे यूज हो रहा है उसको संकेत करके बता रहे हैं, किसी ने मुझे कॉल नहीं किया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट, नन कैन डू दिस, कोई भी इसे कर नहीं सकते हैं। फाइन। So anybody, none, all those words, anybody, none, somebody, someone, none, these are known as the indefinite pronouns. Indefinite pronoun का मतलब जहाँ पे हमें किसी चीज, व्यक्ति, वस्तु का स्पेसिफिक नंबर पता नहीं है, वहाँ पे हम यूज करते हैं indefinite pronouns को। नंबर 7, distributive pronoun. Pronouns definition in हिंदी, जब each, either
और नीदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है? When we use each, either, neither known in the British pronunciation, either, neither known in the American pronunciation. When we use each, either, neither, fine, instead of pronouns, this is known as the distributive pronoun. Distributive pronoun किसको बोलेंगे? Each, either, neither का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में होगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल्स, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। इज लगा हो यहाँ पे, इज, वी मस्ट अंडरस्टैंड। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, व्हाट डज इट मीन? ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट मतलब प्रत्येक लड़के जो क्या है, इंटेलिजेंट है। ईच ऑफ द बॉयज इज, तो एक बॉय के बारे में बता रहा है ये प्रत्येक, एक बॉय के बारे में, इसलिए क्या लगा यहाँ पे, इज। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट इन द क्लास। एंड अनदर थिंग वी नीड टू रिमेंबर, जहाँ पे भी वन ऑफ द लगता है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसके पीछे जो हमेशा प्लूरल्स रहता है और संकेत किसी एक को करता है, तभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है क्या लगी है, इज लगी है। ईच ऑफ द बॉयज इज लेट टूडे। नेक्स्ट, नीदर ऑफ टू बॉयज वॉज एब्सेंट, यहाँ पे भी वही है। नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट, है ना, इन दोनों लड़कों में से जो है कोई भी एब्सेंट नहीं था। बॉयज लगा है पर बता किसको रहा है, ये एक एक को सेपरेटली, इसको नीदर ऑफ द टू बॉयज को सेपरेटली बता रहा है। नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट, इन दोनों में से कोई भी एब्सेंट नहीं था। सब एब्सेंट नहीं थे, नहीं आएगा, नहीं था, संकेत ये एक को कर रहा है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो है सिंगुलर फॉर्म की लगती है। नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट। सो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स, ईच, नीदर, आइदर, नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक वाचक। रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, है ना, अपोजिट। जैसे आप कर रहे हैं वैसे मैं भी आपके साथ डील कर रहा हूँ, दैट्स नोन द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन डेफिनेशन इन हिंदी, ईच अदर और वन एंड अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, इट्स द सिंपल डेफिनेशन, ईच अदर एंड वन एंड अदर नोन एज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि ये जो है अपोजिट कार्य करती है, फंक्शन। अपोजिट मतलब परस्पर, एक साथ, जैसे आपके साथ और वैसे ही मेरे साथ भी। एग्जाम्पल्स, दे लव्ड ईच अदर, दे लव्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से क्या किया, प्यार किया। एक ने भी प्यार किया, दूसरे ने भी प्यार किया। सो दे लव्ड ईच अदर नोन हियर एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फंक्शनिंग द वर्क टुगेदर, और एल्स इट्स नोन एज द टिट फॉर टैट, जैसा आपने किया वैसा ही मैंने भी आपके लिए किया। Next, they missed one another. They missed one another a lot. This is also talking about the reciprocal pronoun. So in the examples given, each other or one another known as a reciprocal pronoun. Number 9, relative pronouns. रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है रिलेट करना, सेंटेंसेस को जोड़ना, रिलेट करना एक दूसरे से। ध्यान रखना, इसमें जो जितने भी WH वाले जो वर्ड्स है, क्वेश्चन वर्ड्स, उनको यूज़ किया जाता है एज ए रिलेटिव में भी, ठीक है। और जिसमें जो है दैट, हु इत्यादि, ये सारे जो है पाए जाते हैं। मतलब क्या होता है इसको, ये सेंटेंस में जो है रिलेट करती हैं, जोड़ती हैं, दूसरों को रिलेट करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल्स, दिस इज द बुक that was given to me. This is the book that was given to me. That क्या कर रहा है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। that हमने पढ़ा, that डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, बट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर रहा है ये, यहाँ पे जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट मतलब जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को। दिस इज द बुक that was given to me. that की वजह से जो है अगला वाला सेंटेंस भी जुड़ा।
यो बुक है जो मुझे दी गई थी। इसी तरह से when, एग्जाम्पल, when I was child I went to शिमला। फाइन, when क्या कर रहा है यहाँ पे, सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। when I was child, जब मैं बच्चा था मैं शिमला गया, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। द बॉय हु तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, हु आर यू, बट यहाँ पे हु क्या कर रहा है, सेंटेंसेस को रिलेट कर रहा है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, हु नोन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइनिंग दी टू सेंटेंसेस हियर। हु का मतलब यहाँ पे आ रहा है जो, कौन नहीं आ रहा है देखना है ना, ये भी याद रखना है। एग्जाम्पल्स दिए गए जो रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। Next, number 10, interrogative pronoun. What do you mean by interrogative pronoun? Interrogative pronoun simply means the pronouns which ask questions. क्वेश्चन पूछने वाले सारे वर्ड्स को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछने वाले कौन से वर्ड्स हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स। कौन कौन से आते हैं उसमें, when, why, where, how, whose, whom, how many, how far, all those things are known as interrogative pronouns. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले जो है क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जितने भी WH क्वेश्चन वर्ड्स जो है यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब दूसरे स्थान पे, प्लस तीसरे स्थान पे सब्जेक्ट, प्लस चौथे स्थान पे वर्ब या अदर वर्ड। फाइन, एग्जाम्पल, व्हाट इज योर फादर। व्हाट क्या है यहाँ पे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है। हु आर यू, आप कौन हो। सो व्हाट, हु नोन एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। सो हाउ टू make the question sentences, firstly using WH question words, then using helping verb, then using the subject, after that verb or other word. Examples, what are you doing, what are you doing, what are you doing, what पहले स्थान पे, are दूसरे स्थान पे, you तीसरे स्थान पे। So this was all about what is pronoun and its types with examples. So watching video related to language, what you have to do, consider subscribing and hit the notifications bell to be the first one to know when we upload new videos related to English language on any topics. So till that, keep watching and keep supporting our channel. Thanks a lot.